یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے۔ یا اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، تیری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تیری دیا ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، گنہگار ہو یا نیک، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہماری زندگی میں ہر قدم پر تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تو نے یہ مقدس مہینہ ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور تیرا قریب حاصل کر سکیں۔ پہلے عشرے کو تو نے رحمت سے نوازا ہے، یعنی اس سمے میں تو اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ ہم کمزور اور گنہگار ہیں، کئی بار اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن تو سب جانتا ہے۔ تیری رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اگر تو اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے تو ہمارے سارے غم، ساری مشکلیں دور ہو جائیں، ہماری پریشانیوں کا حل نکل آئے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ یا اللہ تیری رحمت سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، زندگیوں میں برکت آتی ہے اور نصیب سنور جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی رحمت سے ان نیک لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور جن سے تو پیار کرتا ہے۔ ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں سچائی اور ایمان کی روشنی دے، تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یا اللہ تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ سارے جہان کو گھیر سکتی ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں رکھ، ہماری تکلیفیں دور کر، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت بھر دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے، ہمارے غریبوں کو رزق عطا کر اور ہماری ہر جائز دعا کو قبول کر۔ یا اللہ اس پاک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں نرمی، لفظوں میں مٹھاس اور ہاتھوں میں دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت دے۔ ہمیں ایسا بنا کہ ہم دوسروں کے لیے بھی رحمت بن سکیں۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ ہمیں جنت کا حقدار بنا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ تیری رحمت کے بنا ہم کچھ بھی نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے، ہم پر اپنی بے انتہا رحمت برسا۔ یا اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ناسمجھ ہیں اور کئی بار جانے انجانے میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو تجھے پسند نہیں۔ ہمارے دلوں پر گناہوں کی کالک لگ جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم تجھ سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس نادانی کو معاف کر دے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ جب ہمارا دل صاف ہوگا تو ہماری نیت بھی پاک ہوگی، جب ہماری نیت پاک ہوگی تو ہمارے اعمال بھی نیک بنیں گے، جب ہمارے اعمال نیک ہوں گے تو ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب تو ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اس لیے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور گناہوں سے دور کر دے۔ یا اللہ دنیا کی چمک دھمک اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم کئی بار ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ہماری زبان سے کبھی جھوٹ، کبھی غیبت، کبھی کڑوے الفاظ نکل جاتے ہیں، ہمارا دل حسد، نفرت اور گھمنڈ سے بھر جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا اور ہمارے دلوں کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دے، ہمیں سچائی، ایمانداری اور انسانیت کے راستے پر چلا۔ یا اللہ جب تو ہمارے دل کو پاک کر دے گا تو ہم تجھے سچے دل سے یاد کر سکیں گے، ہماری عبادت میں خلوص آ جائے گا، ہمارے سجدوں میں سکون آ جائے گا اور ہماری دعاؤں میں اثر آ جائے گا۔
हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, हमारे घरों में बरकत आ जाएगी और हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। इसलिए या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो नेक हो, जो नर्म हो, जो तेरा खौफ रखने वाला हो और जो तेरी याद से हर वक्त रोशन रहे। या अल्लाह, इस पाक महीने में हम तुझसे यही फरियाद करते हैं कि हमारे दिलों को हर तरह की बुराई से, हर तरह की गंदगी से और हर तरह के गुनाह से साफ कर दे। हमें ऐसा इंसान बना जो नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाए, जो झूठ नहीं बल्कि सच्चाई बोले, जो किसी को तकलीफ नहीं बल्कि सबकी मदद करे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे करीब हैं, जिनसे तू प्यार करता है और जिनका दिल पाक होता है। या अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमें गुनाहों से बचा और हमें अपनी रहमत से नवाज। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, तू सबसे ज्यादा जानने और सुनने वाला है। तू हमारे हालात से बेखबर नहीं है। हम तेरे ही बंदे हैं, तेरी ही मर्जी से हमारी जिंदगी चलती है। कभी खुशियाँ मिलती हैं तो कभी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन या अल्लाह, जब दुख और मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है, हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं और हमारी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। ऐसे हालात में बस तू ही है जो हमें सहारा दे सकता है। हम तुझसे ही फरियाद करते हैं, या अल्लाह, हमारी तकलीफ़ों को दूर कर और हमें सुकून अता फरमा। या अल्लाह, कई बार हम अपने हालात से परेशान हो जाते हैं, दिल उदास हो जाता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कभी घर की परेशानियाँ, कभी रोज़ी रोटी की चिंता, कभी अपनों की बेवफाई, कभी बीमारियों की तकलीफ़ें हमें अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन तू तो जानता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। या अल्लाह, हमें हमारी कमज़ोरियों पर न छोड़, हमें अपने रहम और करम से संभाल ले। हमारी हर परेशानी का हल निकाल दे और हमें सुकून भरी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं, क्योंकि तू ही हमारी हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। तू ही वो ज़ात है जो कुन फयकून कहकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। हम पर अपनी रहमत की बारिश कर दे, हमारे दुखों को खुशियों में बदल दे। हमारे आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदल दे और हमारी जिंदगी में सुकून भर दे। या अल्लाह, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तकलीफ में है। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा है, कोई अपनों से दूर है, कोई अकेलेपन की तकलीफ में है। लेकिन तू सबसे बड़ा मददगार है। या अल्लाह, हर दुखी दिल को सुकून अता कर, हर परेशान को राहत दे और हर बेबस की मदद कर। या अल्लाह, जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तू अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू हमेशा उनके साथ होता है। हमें यकीन और भरोसा अता कर कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हमारे दिलों में सुकून डाल दे ताकि हम अपनी परेशानियों को भी हिम्मत और सब्र से सह सकें। या अल्लाह, हमारी जिंदगी में हर वो खुशी शामिल कर जो हमें तेरे करीब लाए और हर वो गम दूर कर जो हमें तुझसे दूर कर दे। हमें वो सुकून अता कर जो नफरत, जलन और गुनाहों से दूर रखे। हमारे घरों में बरकत दे, हमारी रोज़ी में इजाफा कर, हमारी बीमारियों को दूर कर और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। या अल्लाह, हमारी तकलीफ़ों को दूर कर और हमें सुकून अता फरमा। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला, सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला और हिदायत देने वाला है। हम कमज़ोर और गुनहगार हैं, कई बार सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। दुनिया की चमक धमक, शैतान के बहकावे और नफ्स की ख्वाहिशों में फंसकर गुनाह कर बैठते हैं। लेकिन या अल्लाह,
تو हमारे दिलों को रोशनी अता कर, हमें नेक बनने की तौफीक दे और हमें भलाई के रास्ते पर चला। या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो सच्चाई और ईमानदारी से भरा हो। हमें ऐसी नीयत दे जो हमेशा भलाई का इरादा करे। हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो हमें तेरे करीब ले जाएं। हमें झूठ, फरेब, घमंड और बुराई से बचा। हमारी जबान को झूठ से, हमारे हाथों को हराम से और हमारे कदमों को गुनाहों की तरफ बढ़ने से रोक दे। या अल्लाह, हमें सच्चा और अच्छा इंसान बना। हमें ऐसे लोगों में शामिल कर जो दूसरों की मदद करते हैं, गरीबों और मजबूरों का सहारा बनते हैं और हर वक्त भलाई के कामों में लगे रहते हैं। हमें ऐसा बना कि हम नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाएं, झगड़े नहीं बल्कि सुलह कराएं और हर किसी के लिए भलाई का जरिया बने। या अल्लाह, हमें इबादत करने की तौफीक दे। हमें नमाज, रोज़ा, ज़कात और सदका देने वाला बना। हमें ऐसा बना कि हमारे दिलों में सिर्फ तेरी मोहब्बत हो और हमारी सारी ख्वाहिशें सिर्फ तेरी रज़ा के मुताबिक हों। हमें दुनिया की फिजूल दौड़ में न उलझा, बल्कि हमें वही दे जो हमारे लिए बेहतर हो और जो हमें तेरे करीब लाए। या अल्लाह, हमारे दिलों से हर तरह की बुराई निकाल दे। हमारे अंदर से हसद, नफ़रत, घमंड और खुदगर्जी को ख़त्म कर दे। हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना। हमें दूसरों की खुशियों में खुश और दुख में उनके साथ खड़ा रहने वाला बना। हमें ऐसा इंसान बना कि जब हम दुनिया से जाएं, तो लोग हमें याद करें हमारे नेक कामों की वजह से, हमारी अच्छाई की वजह से। या अल्लाह, तूने हमें ये ज़िंदगी एक इम्तिहान के लिए दी है। हमें इस इम्तिहान में कामयाब कर। हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता कर। हमें ऐसा बना कि जब मौत आए तो हम गुनाहों में नहीं बल्कि तेरी इबादत में हों। हमें जन्नत का हकदार बना और जहन्नम की आग से बचा। या अल्लाह, हमें नेक बनने की तौफीक दे और भलाई के रास्ते पर चला। या अल्लाह, तू सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। हम तेरे बंदे हैं, कमज़ोर हैं, नासमझ हैं और बार बार गलती कर बैठते हैं। जाने अनजाने में तुझसे दूर हो जाते हैं, तेरी नाफरमानी कर बैठते हैं। लेकिन तू तो बहुत ही मेहरबान है, तू हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। या अल्लाह, हम तुझसे तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे छोटे बड़े, छुपे खुले, जानबूझकर और अनजाने में किए गए सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी रूह को हल्का कर दे और हमें उस अंधेरे से निकाल जो हमारे गुनाहों ने हमारे अंदर भर दिया है। या अल्लाह, हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन तूने हमें ये पवित्र महीना दिया ताकि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकें, अपने दिलों को साफ़ कर सकें और तेरे करीब आ सकें। इस मुबारक मौके पर हमारी तौबा को कबूल कर, हमें नेक राह दिखा और हमें जन्नत की तरफ ले जा। या अल्लाह, हमें जन्नत की राह दिखा। या अल्लाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सकें। हमें भटकने से बचा, हमें गलत रास्तों पर जाने से रोक और हमें सच्चाई और भलाई की राह दिखा। हमें इस काबिल बना कि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सकें, तेरी बंदगी कर सकें और अपनी आखिरत को संवार सकें। या अल्लाह, हमें ऐसे काम करने की हिम्मत दे जो हमें तेरी जन्नत का हकदार बना दें। हमारे आमाल को नेक बना, हमारी नीयत को पाक बना और हमारे हर छोटे बड़े काम में अपनी बरकत डाल। हमें ऐसा बना कि हम हर वक्त तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र अदा करें और तेरी इबादत में लगे रहें। या अल्लाह, हमारे घर, परिवार और दोस्तों पर भी अपनी रहमत बरसा। या अल्लाह, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर, अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए भी तुझसे दुआ करते हैं। तू हम सब पर अपनी रहमत की बारिश कर।
ہمارے گھروں کو سکون اور برکت سے بھر دے، ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بنا، ہمارے دلوں سے ہر طرح کی نفرت، حسد اور بری سوچ کو نکال دے۔ یا اللہ، ہمارے ماتا پتا پر رحمت فرما، ان کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت اچھی کر اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا، ہمیں ایسا بنا کہ ہم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ان کے دل کو سکون دیں اور انہیں کسی بھی تکلیف سے بچائیں۔ یا اللہ، تو سب سے بڑا دینے والا ہے، سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہماری روزی میں برکت دے، ہمیں حلال کمائی کا ذریعہ عطا کر اور ہر طرح کی تنگی اور پریشانی سے بچا، ہمیں اتنا عطا کر کہ ہم خود بھی خوشی خوشی جی سکیں اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کر سکیں۔ ہمارے گھروں میں برکت، امن اور محبت قائم رکھ۔ یا اللہ، اس دنیا میں کئی لوگ بیمار ہیں، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے مرض کو ختم کر، بیماروں کو صحت مند بنا اور ہر تکلیف کو دور کر دے۔ ہمیں صحت مند زندگی عطا کر تاکہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں اور نیک راستے پر چل سکیں۔ یا اللہ، جو بھی پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، دکھی ہیں، ان کے لیے راستے آسان کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان کے دلوں کو سکون دے اور ان کی تکلیفوں کو خوشی میں بدل دے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں اپنے قریب کر اور ہماری ہر مشکل کو آسان کر۔ ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیری عبادت میں مشغول رہیں، ہر اچھے کام کی توفیق ملے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔